Critical thinking and reflective practices. Unit number 2, a critical thinking framework. Every day, a sea of decisions stretches before us. Some are small and unimportant, but others have a larger impact on our lives. For example, which politician should I vote for? Should I try the latest diet craze? Or will email make me a millionaire? We're bombarded with so many decisions that it's impossible to make a perfect choice every time. But there are many ways to improve our chances, and one particularly effective technique is critical thinking. This is a way of approaching a question that allows us to carefully deconstruct a situation, reveal its hidden issues, such as bias and manipulation, and make the best decision. If the critical part sounds negative, that's because, in a way, it is. Rather than choosing an answer because it feels right, a person who uses critical thinking subjects all available options to scrutiny and skepticism. Using the tools at their disposal, they'll eliminate everything but the most useful and reliable information. There are many different ways of approaching critical thinking, but here's one 5-step process that may help you solve any number of problems. 1. Formulate your question. In other words, know what you're looking for. This isn't always as straightforward as it sounds. For example, if you're deciding whether to try out the newest diet craze, your reasons for doing so may be obscured by other factors, like claims that you'll see results in just 2 weeks. But if you approach the situation with a clear view of what you're actually trying to accomplish by dieting, whether that's weight loss, better nutrition, or having more energy, that'll equip you to sift through this information critically, find what you're looking for, and decide whether the new fad really suits your needs. 2. Gather your information. There's lots of it out there, so having a clear idea of your question will help you determine what's relevant. If you're trying to decide on a diet to improve your nutrition, you may ask an expert for their advice or seek other people's testimonies. Information gathering helps you weigh different options, moving you closer to a decision that meets your goal. 3. Apply the information, something you do by asking critical questions. Facing a decision, ask yourself, what concepts are at work? What assumptions exist? Is my interpretation of the information logically sound? For example, in an email that promises you millions, you should consider, what is shaping my approach to this situation? Do I assume the sender is telling the truth? Based on the evidence, is it logical to assume I'll win any money? 4. Consider the implications. Imagine it's election time, and you've selected a political candidate based on their promise to make it cheaper for drivers to fill up on gas. At first glance, that seems great. But what about the long-term environmental effects? If gasoline use is less restricted by cost, this could also cause a huge surge in air pollution, an unintended consequence that's important to think about. 5. Explore other points of view. Ask yourself why so many people are drawn to the policies of the opposing political candidate. Even if you disagree with everything that candidate says, exploring the full spectrum of viewpoints might explain why some policies that don't seem valid to you appeal to others. This will allow you to explore alternatives, evaluate your own choices, and ultimately help you make more informed decisions. This 5-step process is just one tool, and it certainly won't eradicate difficult decisions from our lives, but it can help us increase the number of positive choices we make. Critical thinking can give us the tools to sift through a sea of information and find what we're looking for. And if enough of us use it, it has the power to make the world a more reasonable place. Stages of critical thinking. Critical thinking definition.
Critical thinking is using the mind in a disciplined, sequential way to shape beliefs and action. क्रिटिकल थिंकिंग में हम अपने माइंड को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम अपनी बिलीव्स को शेप देते हैं एक डिसिप्लिन और सिक्वेंशियल वे में, और फिर उसके बाद एक्शंस कर लेते हैं. स्टेजेस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग. स्टेजेस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को समझेंगे. ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बेंजामिन ब्लूम्स ने एक्सप्लोर की और उसमें उसने इसके 3 लेवल्स आइडेंटिफाई किए, 3 डोमेन्स आइडेंटिफाई की, जिसमें उसने कोग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन के बारे में बताया, जो कि हर इंडिविजुअल के अंदर होती हैं. कोग्निटिव डोमेन इंडिविजुअल के माइंड से रिलेटेड होती है, यानी कि उसके इंटेलेक्चुअल स्किल से रिलेटेड. अफेक्टिव डोमेन जो है इंडिविजुअल की फीलिंग्स और बिलीफ से बिलोंग करती है, और साइकोमोटर डोमेन जो है वो इंडिविजुअल की मूवमेंट से, फिज़िकल मूवमेंट से बिलोंग करती है. लेकिन इस क्रिटिकल थिंकिंग में हम जिस चीज़ पर फोकस करेंगे वो है कोग्निटिव डोमेन. कोग्निटिव डोमेन क्या है? कोग्निटिव डोमेन को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि फर्स्ट स्टेज जो है वो क्या है. सबसे पहली स्टेज होती है एक बच्चा जो सीखता है वो सबसे पहले चीज़ों को रिमेंबर करता है, यानी कि ए एप्पल, बी बॉल, सी कैट, डी डॉग. जैसे कि ए एप्पल से हमें पता लग जाएगा कि ए से एप्पल होता है. हम बच्चों को, छोटे बच्चों को कोई भी चीज़ पढ़ाने जब भी पढ़ाते हैं तो सबसे पहले हम उसको बताते हैं कि एप्पल जो है वो ए से स्टार्ट होता है, बॉल जो है बी से स्टार्ट होता है, कैट जो है सी से स्टार्ट होती है. ऐसी छोटी छोटी बातों से हम बच्चों को उनको याद कराने का अमल की तरफ लेकर आ रहे होते हैं. जैसे कि आपका नाम क्या है? आपका नाम सारा है. इसी तरह इस स्टेज को हम कहते हैं रिमेम्बरिंग, यानी कि चीज़ों को याद रखने की स्टेज. इसमें आप क्या कर सकते हैं, छोटा बच्चा जब इसमें क्या कर सकता है, चीज़ों को रिकॉल कर सकता है फैक्ट्स के साथ, और उसके साथ चीज़ों को रिकॉल करने के साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट बनाता है. जैसे कि अगर एप्पल है तो एप्पल ए से स्टार्ट होगा, बॉल जो है बॉल बी से स्टार्ट होगा. इसी तरह यही अमल खाली ना सिर्फ बच्चे के साथ होता है, जैसे जैसे इंडिविजुअल या बच्चा बड़ा होता जाता है हम उस चीज़ को उसके नेम से याद रखना स्टार्ट कर देते हैं. नेक्स्ट स्टेज पे जब हम आते हैं तो नेक्स्ट स्टेज जो होती है वो होती है अंडरस्टैंडिंग की, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं. एक्सप्लेन आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट. एप्पल जो है ये हमें क्या बेनिफिट देता है? एप्पल हमें खाना देता है, यानी हम खाते हैं, हमारी भूख एप्पल के साथ मिटती है. हम खाएंगे और हमारी भूख ख़त्म हो जाएगी. इस तरह हमें इस कॉन्सेप्ट को हम आगे लेके जाते हैं, तो हमें आगे हम अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं चीज़ों को. नंबर 3 स्टेज है अप्लाइंग. यूज़ इन्फॉर्मेशन इन न्यू सिचुएशन टू आंसर क्वेश्चन और सॉल्व प्रॉब्लम. अब अप्लाई क्या है? अप्लाई की स्टेज में हम क्या करते हैं, एप्पल है, सबसे पहले हमने इसको रिकॉल किया, सबसे पहले हमने इसको याद किया कि एप्पल ए से बनता है. अंडरस्टैंडिंग में हमने समझा कि एप्पल को खाने से हमारी भूख ख़त्म होती है. एप्लीकेशन लेवल में जब हम जाएंगे, यानी कि 3rd लेवल में हम जब जाएंगे तो हम उसमें क्या करेंगे, हम एप्पल से डिफरेंट डिशेस बनाना स्टार्ट कर देंगे. जैसे कि हम एप्पल से क्या क्या, एप्पल पाई बना सकते हैं, एप्पल जूस बना सकते हैं. हम चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं 3rd स्टेज के अंदर, न्यू इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए, और इससे डिफरेंट चीज़ों को कर रहे हैं. ये मैंने एग्जांपल आप लोगों को एक जस्ट सिर्फ समझाने के लिए दी है, हम इसको और तरह से भी कर सकते हैं. एनालाइजिंग. 4th स्टेज में हम क्या करते हैं, टेक अ पार्ट इन्फॉर्मेशन टू शो रिलेशनशिप, कॉजेज़ एंड कनेक्शन. अब एनालिसिस में हम क्या करेंगे कि एप्पल के खाने से या एप्पल से हमने जो डिशेस बनाई हैं, अप्लाई कर दी हैं, डिफरेंट डिशेस बना ली, इससे हमें बेनिफिट क्या हो रहा है. क्या एप्पल खाने से हमारी सेहत अच्छी होती है? क्या एप्पल खाने से हम बीमार पड़ जाते हैं? तो हम एनालाइज करेंगे हमारा एप्पल खाने से हमारा रिलेशनशिप कैसा बनता है, जैसे कि क्या कॉजेज़ हैं इसके, क्या कनेक्शन है, जो भी है, क्या इससे बीमारियां हमें लगती हैं, हम
ये चीज़ें देख सकते हैं। जब हम 5th स्टेज पे जाएंगे तो उसमें हम क्या करते हैं, अवेलुएट करते हैं, जस्टिफाई द स्टैंड और पोजीशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी हमने कंक्लूड किया होता है कि एप्पल खाने से हमारी सेहत अच्छी होती है, एप्पल हमारे जिस्म को तवानाई करता है, हम एप्पल खाने से तरोताज़ा हो जाते हैं, तो हम अपने उस डिसीजन को अवेलुएट कर सकते हैं और उसके बाद हम उसके ऊपर स्टैंड ले सकते हैं कि हाँ, जो ये मैंने इसके एप्पल को खाने के बाद जो मैंने महसूस किया है ये ऐसा ही होता है। नंबर सिक्स क्या कहते हैं, क्रिएटिंग में हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस समथिंग न्यू। अच्छा, अब एप्पल खाने से मैंने एक डिश बना ली, अब एप्पल खाने से समथिंग न्यू में मैं क्या कर सकती हूँ कि क्या एप्पल की इस स्टेज में हम क्या कर सकते हैं कि क्या हम एप्पल की कोई मेडिसिन भी बना सकते हैं, जिसके खाने से ज़रूरी नहीं है हम उसकी कोई डिश बना के, हम एप्पल के कोई कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी बना सकते हैं। तो इस तरह से ये इसकी 6 स्टेज हो जाएगी। इसी तरह जब हम स्टेजेस को देखें तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि हमारी सबसे पहली जो क्रिटिकल थिंकिंग स्टेज होती है वो अनरिफ्लेक्टिव थिंकर होती है। आप इसे एक बच्चे से भी इसको आप मुंसलिक कर सकते हैं। जैसे कि अनरिफ्लेक्टिव थिंकर में हमारी जो स्टेज है वो किससे रिलेशनशिप इसका फाइंड हो रहा है, रिमेंबरिंग से हो रहा है, यानी कि जिसमें बच्चा अभी चीज़ों के बारे में सिर्फ सीख रहा है। उसके बाद हम जब नेक्स्ट स्टेज पर जाते हैं तो चैलेंज थिंकर में हम क्या करते हैं कि हम अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं हर चीज़ के बारे में। और बिगनिंग थिंकर में हम क्या देखते हैं, बिगनिंग थिंकर में हम उसको अप्लाई करना सीख रहे होते हैं। प्रैक्टिसिंग थिंकर में हम अपनी उसी इंफॉर्मेशन को जो हमने गैदर की होती है हम देखते हैं कि क्या हम ठीक या नहीं है। एडवांस थिंकिंग में हमारी जो है वो हमारी एवेल्युएटिंग के साथ है। और अकम्प्लिश थिंकर में हम क्या करते हैं, हम कोई चीज़ बना लेते हैं। इस पिरामिड में आप लोग देख सकते हैं जैसे कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का पिरामिड था, ये बिल्कुल उसी तरह से है। तो इसमें आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का रिलेशनशिप क्रिटिकल थिंकिंग की स्टेजेस के साथ कैसा है। दोनों बेसिकली एक ही चीज़ है। स्टेज नंबर 1 अनरिफ्लेक्टिव थिंकर, रिमेंबरिंग से बिलोंग करती है। इस स्टेज में एक बच्चा क्या कर सकता है या एक स्टूडेंट या आप लोग क्या कर सकते हैं अगर आप अभी नए नए क्रिटिकल थिंकर बने हैं। डू नॉट एवेलुएट देयर थॉट्स और द वे दोज थॉट अफेक्ट देयर एक्शन एंड बिलीव। इसमें आप अपनी ही थॉट्स को या जिस चीज़ के बारे में आप सोचने जा रहे हैं एवेलुएट नहीं कर सकते, क्योंकि इस स्टेज पे अभी आप अनरिफ्लेक्टिव थिंकर हैं, यानी कि कोई भी चीज़ को प्रैक्टिस नहीं कर सकते, एवेलुएट नहीं कर सकते। इस स्टेज पे टीचर आपकी कैसे हेल्प कर सकती है, क्लासरूम टीचर। जब आप भी एक फ्यूचर टीचर बनेंगे तो आप कैसे बच्चों को अनरिफ्लेक्टिव थिंकर की स्टेज पर हेल्प करेंगे। चीज़ों के बारे में आप उनको कॉन्सेप्ट देना स्टार्ट कर देंगे, याद कराना चीज़ों के बारे में स्टार्ट कर देंगे, चीज़ें दिखाएंगे और उन्हें बताएंगे कि इस चीज़ का ये पर्पस है या ये चीज़ का ये नाम है। सेकंड स्टेज चैलेंज थिंकर, जो कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में सेकंड स्टेज आती है अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। इसमें हम किस तरह के थिंकर होते हैं, बिकम अवेयर ऑफ थिंकिंग एंड अवेयर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट अकर बिकॉज ऑफ पुअर थिंकिंग। अब हमारी अभी स्टेज बिल्कुल हम फर्स्ट स्टेज पर हैं, इसमें अभी हम बस सीख रहे हैं। अनरिफ्लेक्टिव थिंकर से चीज़ों के नाम हमें सिर्फ याद हुए हैं। अब हम जब आगे मूव करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी सोच भी बहुत ज़्यादा छोटी होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। अभी हम सिर्फ नाम को समझ रहे होते हैं, चीज़ों के नामों को लेकर। आगे हम इस चीज़ का पर्पस क्या है उसको हम नहीं समझते। लेकिन इसमें टीचर हमारी क्या हेल्प कर सकती है, मॉडल थिंकिंग एंड एक्सप्लेन दैट नो वन इज़ आ नॉन एट ऑल। टीचर अब उसमें बच्चे को सिखाने के लिए या थिंकिंग को इन्हेंस करने के लिए, हौसला देने के लिए बच्चों को मोटिवेट कर सकती है कि अभी आप
सब कुछ नहीं जानते, आहिस्ता आहिस्ता करके आप जान सकते हैं। यानी कि बच्चों को मोटिवेट करिए, चैलेंज करिए, चैलेंज थिंकर बना रही है कि अगर आप ये चीज़ सीख जाएंगे तो आप और अच्छे तरीके से इस चीज़ के बारे में बात कर सकेंगे। स्टेज 3 बिगनिंग थिंकर wants to be a critical thinker but lacks skill to do। इस स्टेज में हम क्या करते हैं, सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं। सीखने की कोशिश में हम क्या करते हैं कि हम अभी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। इसमें टीचर हमारे साथ क्या रिस्पॉन्स कर सकती है, इनकरेज गुड हैबिट्स एंड टीच द यूनिवर्सल इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड। अच्छा, अब इस स्टेज में टीचर क्या बच्चों को क्रिटिकल थिंकर बनाने के लिए उनको हम लोगों ने जो क्रिटिकल थिंकिंग के स्टैंडर्ड्स पहले यूनिट्स में पढ़े हैं उसकी मदद से बच्चों की या किसी भी इंडिविजुअल की थिंकिंग को इन्हांस कर सकती है। जिसमें हमने क्या पढ़ा था, क्लैरिटी होती है, एक्यूरेसी होती है, इसी तरह डिफरेंट और जो क्रिटिकल थिंकिंग के स्टैंडर्ड्स हैं उनकी वजह से उनको यूज़ करते हुए टीचर बच्चों के साथ उनकी थिंकिंग को और इन्हांस कर सकते हैं। एक दफ़ा फिर हम रिकॉल कर लेते हैं कि हम किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के स्टैंडर्ड्स को यूज़ करते हुए। क्लैरिटी, कैन यू टेल मी मोर, किसी भी सिचुएशन के बारे में क्या आप बात और कर सकते हैं। एक्यूरेसी, इज़ इट ट्रू, क्या ये वाकई में सच है बात या नहीं। प्रिसाइजेशन, व्हाट आर द डिटेल, कि इस चीज़ को लेकर आपके पास कितनी डिटेल है जिसके ऊपर आप बात कर सकते हैं। रेलिवेंस, हाउ डज इट रिलेट, क्या वाकई ये रिलेट कर रही है जो मुझे नज़र में आ रहा है उससे। डेप्थ, आर ऑल द फैक्टर एड्रेस, क्या इसमें हर चीज़ों के बारे में हमने देख लिया है, हर चीज़ों के पहलुओं के बारे में हमने देख लिया है। ब्रेड, व्हाट इज़ अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, इसके अलावा एक बंदे ने एक बात कर दी है, दूसरा बंदा इसके बारे में क्या सोचता है, दूसरा बंदा इसके बारे में क्या राय देता है। लॉजिक, डज इट मेक सेंस, क्या इसने जो मुझे बात दी है इससे कोई सेंस भी बनती है या नहीं बनती। स्टेज 4 प्रैक्टिसिंग थिंकर एनालिसिस, जिसमें हम कर सकते हैं आर अवेयर ऑफ एंड बिगिन वर्किंग ऑन देयर थिंकिंग फ्लॉस। अब इसमें जब हमने किसी चीज़ के बारे में सोचना स्टार्ट किया है, हम स्टैंडर्ड्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग से भी गुजर के उसकी एक्यूरेसी, क्लैरिटी को, सब चीज़ों को हमने एक्सप्लोर कर लिया है, हमने देख लिया है। तो इसमें हमें क्या पता लगेगा कि मेरी जो थिंकिंग, मैं जिस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ क्या वो वाकई उसमें सच्चाई है या मेरे अभी भी इस थिंकिंग में कोई वीक पॉइंट्स हैं, यानी कि अभी भी मैं उस पॉइंट पे पहुंच नहीं पाया जिस पे मुझे पहुंचना चाहिए था। तो हम इसमें अपने फ्लॉस, अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टीचर इसमें हमारी कैसे मदद कर सकती है, टू इनकरेज लुकिंग एट द इशू फ्रॉम मैनी पॉइंट ऑफ व्यू। टीचर इसमें उसको डिफरेंट वेज दिखा सकती है जिसकी मदद से वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को और स्ट्रॉन्ग कर सकता है डिसीजन लेने। एडवांस्ड थिंकर have good habits for thinking but are not always consistent, are in charge of their thinking and continually improving। इसमें आपके पास ऑप्शन होती है कि आप अपने आप को, अपने सेल्फ को और इम्प्रूव कर सकते हैं। आप भी एक अच्छे थिंकर बनने की आप में एबिलिटी है और इस एबिलिटी को आप फर्दर यूज़ करते हुए अपने स्किल्स को और इन्हेंस करें और इम्प्रूव करें ताकि आपकी थिंकिंग और अच्छे से डेवलप हो सके। टीचर इसमें आपकी कैसे हेल्प कर सकती है, आपको मोर ऑप्शन प्रोवाइड करती है जिससे आप अपने डिसीजन को लेने में आपको आसानी होती है। स्टेज 6 अकम्प्लिश थिंकर मेक न्यू डिसीजन। अब आप इसमें अपनी क्रिटिकल थिंकिंग के स्किल्स को यूज़ करते हुए डिसीजंस ले सकते हैं, नए डिसीजंस ले सकते हैं। टीचर आप इसमें क्या आपकी क्या मदद कर सकती है, इन फॉर्म ऑफ द गोल, आपको आपकी लाइफ के गोल्स के बारे में, आपको अपनी एकेडमिक लाइफ के गोल्स के बारे में इन्फॉर्म कर सकती है ताकि आप एक अच्छे क्रिटिकल थिंकर बन सकें।